జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలో ఈరోజు ఒక సర్వే నెంబర్ సంబంధించి ఏదైతే రాయచూర్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని సర్వే నెంబర్లలో సుమారుగా 39 ఎకరాల 19 గుంటల పొలము తమదంటూ ఒక ఏదైతే దర్గాకు సంబంధించిన స్థలం, ఇది వక్ఫ్ ల్యాండ్, మా తాతగారికి ఇనాంగా ఇచ్చిన భూమిని కొందరు ఇల్లీగల్గా రిజిస్టర్లు చేసుకుని ఆ ప్లాట్ల అమ్మకాలు అయితే చేశారు. సో ఈ స్థలం అంతా మాదే అని చెప్పేసి కోర్టులో కూడా కేసు నడిచింది. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా మాకు సంబంధించిందే అని చెప్పేసి ఒక రాజపత్రం అయితే ఇచ్చింది. అదేవిధంగా 1965 దానికి సంబంధించిన 70కి సంబంధించిన కాసరా పహానీలు కూడా మా పేరిటనే ఉన్నాయి. కానీ కొంతమంది దీన్ని ఇల్లీగల్గా రిజిస్టర్ చేసుకొని ఇల్లీగల్గా ప్లాట్లు అమ్మకాలు చేశారు. సో ఈ విషయం పైన మేము ఈరోజు వచ్చి ఇక్కడ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసి అదేవిధంగా ఇది స్థలం మాకు సంబంధించినంతగా బోర్డులు పాదానికి వచ్చామని చెప్పేసి ఏదైతే ముత్తావాలి సయ్యద్ నాసిన్ సయ్యద్ యాకూబ్ మునిద్దన్ అనే ఈ వ్యక్తి వక్ఫ్ బోర్డుకు సంబంధించిన ఇన్స్పెక్టర్లు మొహమ్మద్ సిరాజ్ పాషా అదేవిధంగా గౌస్ పాషా వీరిద్దరితో కలిసి ఈరోజు హైదరాబాద్ నుంచి సుమారు ఒక 20 మందితో కలిసి అక్కడ బిలాంగింగ్స్ టు మీ అని చెప్పేసి ఒక బోర్డులు అయితే పాతడానికి అయితే ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే ఆ ప్రయత్నం చేసే సందర్భంలో అక్కడ కొంతమంది అక్కడ ప్లాట్లకు సంబంధించిన ఓనర్లు దాన్ని అడ్డుకోవడం జరిగింది. కొద్దిగా ఘర్షణ వాతావరణం చోటు చేసుకున్న పరిస్థితి కనిపించింది. అయితే అందరితో వాళ్ళు ఆగి వెనుదిరిగి వెళ్ళడం జరిగింది. మళ్ళీ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్తో వచ్చి ఖచ్చితంగా మాకు సంబంధించిన స్థలాన్ని మేము స్వాధీనం పరుచుకుంటామని చెప్పేసి ఈరోజైతే వాళ్ళు చెప్పిన పరిస్థితి కనిపిస్తున్నారు. అయితే ఈ స్థలం వచ్చేసి మనకు రాయచూర్ రోడ్డులోని రాఘవేంద్ర కాలనీ సమీపంలో ఉన్నటువంటి సర్వే నెంబర్సు 1012, 1038, 1011, 1039, అదేవిధంగా 95, 96, 97, 98 ఇవన్నీ ఈ సర్వే నెంబర్లో కూడా మొత్తం 39 ఎకరాల 11 గుంటల స్థలము మాకు సంబంధించింది. అది గెజిట్ నెంబర్ 38, సీరియల్ నెంబర్ 1051, 2020/2022 గెజిట్ నెంబర్ అయితే తీసుకుని వాళ్ళైతే చూపించడం జరిగింది మీడియాకు. సో ఇక్కడ ఘర్షణ వాతావరణం మాకు అవసరం లేదు. మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళి మేము ఖచ్చితంగా వచ్చి ఎస్పీ సహకారంతో పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్తో వచ్చి ఏదైతే మా సర్వే నెంబర్లు 1011, 1012, 1038, 1039, అదేవిధంగా 95, 96, 97, 98 మొత్తం ఈ 8 సర్వేలలో ఉన్నటువంటి 39 ఎకరాల 11 గుంటల్లో మా స్థలాన్ని మేము స్వాధీనం చేసుకుంటామని చెప్పేసి ఆయనకి ఈరోజు మీడియాకు చెప్పిన పరిస్థితి అయితే కనిపించింది. మొత్తం మీద కొంత वो तो खैर ऑफिस के थ्रू आएगा. अब हम उनको बोल के ऐसा बोले वैसा बोले वो मुनासिब नहीं है. ऑफिस का काम ऑफिस कर रही है. हम ऑफिस से मुतमईन है. ऑफिस हमारा साथ दी, हमें यकीन है आगे भी साथ देंगी. मैं फिर बोल रहा हूँ, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ. मैं तेलंगाना स्टेट में बहुत काम कर रहे हैं. जैसा कि सीओ साहब है शाहनवाज कासिम साहब, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ. बोर्ड मेंबर्स है अकबर निज़ामुद्दीन साहब, सैयद अब्दुल फ़तेह बंदगी पाशा साहब है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ. और चेयरमैन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ. और डीएसपी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ. और तेलंगाना स्टेट के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन लोग का भी शुक्रगुजार हूँ. वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं. हैदराबाद में काफ़ी जायदाद बचाए और तेलंगाना में भी बचा रहे हैं. जो भी लीगली प्रोसेस है ना, वो स्टॉप करने का वास्ता है ना, वो लोग क्या बोलते हैं आप अपने? कौन सा स्टाफ? अभी सर्वे करने गया था ना आप लोग? सर्वे करने के लिए क्या बोलते हैं वो लोग आगे तरफ से क्या बोलते हैं? मेजोरिटी बता के डराने के, वो कोई बेफैज़ है, वो कोई काम वाली बात नहीं है. और जो है ऑफिशियल काम ऑफिशियल तरीके से होगा. हम ऑफिशियल पूरा रिकॉर्ड तो आपको बता दिए. इंशाल्लाह ताला एडी से सर्वे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ हम करेंगे. हमारे पास A to Z रिकॉर्ड है, वक्फ बोर्ड में भी A to Z रिकॉर्ड है. हमारा मकसद ये है कि वफ़ की जायदाद वफ़ को आए, ताकि हज़रत को वहाँ से जो भी आमदनी है, उस ज़माने में बड़े लोग खिदमती इनाम बोल के तोहफ़ा करे थे. हज़रत का उर्स है, बाकी के अखराजात है, यहाँ का मेंटेनेंस है. जैसा कि यहाँ पर भी खिदमत करने वाले लोग हैं, जो महबूब भाई है और हमारे रफ़ी भाई है और रफ़ी भाई के बच्चे हैं, मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ जिसने ये काम को अंजाम दिया. ये देख रहे हैं ना, दरगाह का बहुत बुरा आलम था और हमने इन लोग के सपोर्ट से हमने ये काम अंजाम दिया. हमें कोई पैसे की लालच दौलत की ज़रूरत नहीं है. हमारे आबो अज़ात की दरगाह है, उनकी जायदाद तोहफे में है, उनकी चीज़ उनको आ जाए ताकि कौम का फ़ायदा हो. जो गरीब है, मुस्तहिक़ है, बेवा है, वो लोग के लिए हम काम करना चाह रहे हैं. बट ऐसे बदमाशान तो आते रहेंगे जाते रहेंगे.
वो तो किस्मत में है और हम इसको अंजाम देंगे। हम ऐसा पीछे हटने वालों में से नहीं है। इंशाल्लाह लीगल जो भी प्रोसीजर रहेगा, हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, वक्फ बोर्ड के भी लीगल एडवाइज़र्स हैं, हम उनसे भी रब्ता करेंगे, मशवरा करेंगे, उसके बाद हम लीगल प्रोसीजर जो होगा वो करेंगे। हम कोई गैर गलत काम करने नहीं आए, ना हमारा स्टाफ आया। A to Z आपको रिकॉर्ड बताया दिया। ये लोग अब बोलेंगे तो इस वजह से एडवांस में मैं बोल दे रहा हूँ कि और वो लोग वीडियो लिए गाड़ी की, वो ऑफिशियल गाड़ी है, ऑफिशियल ऑर्डर है, कोई हम लाइन ग्रामर नहीं है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। और वो जो भी बात बोलेंगे बेबुनियाद है, जितना रिकॉर्ड बता दो बोलिए। उनकी अगर चीज़ है तो 1037 उनको ले लो बोलो। हमारे को 1037 से एतराज़ नहीं है। हमारे को एतराज़ है 1011, 1012, 1038, 1039, 95, 96, 97, 98। वो फेक डॉक्यूमेंट बना लिए आरडीओ को उस टाइम पे, सब रजिस्टर को मैनेज करे, क्या बताए पता नहीं। हर टाइम अलग अलग आरडीओ और सब रजिस्टर आते रहते जाते रहते। खैर जब हकीकत मालूम हुई तो कलेक्टर साहब डायरेक्ट धरनी में लॉक कर दिए ताकि ऊपर इसके ट्रांजैक्शन ना हो सके। उनको पता है कि वक्फ का ज़मीन है, वक्फ का ही रहता। ठीक है, थैंक यू। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दरगाह हज़रत सैयद शाह मारूफ पीर क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का जानशीन, सज्जाद नशीन व मुतवल्ली अंडर 42 वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड मुझे मुतवल्ली बनाया 2021 में। दरगाह के तहत 39 एकड़ 10 गुंटे अराज़ी है जो खिदमती इनाम लैंड है, जिसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। सर्वे नंबर 1011, 1012, 1038, 1039, 95, 96, 97, 98 ये जो है सो नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है और आरडीओ का मुंतखब है 1963 का। एक बार जब वक्फ हो जाती जायदाद ता क़यामत तक वो वफ़ी रहती, ना उसको कोई बेच सकता ना कोई उसको ख़रीद सकता। सबसे पहले मुतवल्ली थे सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी जो मेरे नाना, उनके 2 लड़के सैयद अब्दुल हक क़ादरी, सैयद अब्दुल करीम क़ादरी। मैं आपको हाल ही में पूरे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा लीगल हायर के संगत। उनकी एक डॉटर सैयदा फ़हीम सुल्ताना, दोनों भी अनमैरिड थे, सैयद अब्दुल हक क़ादरी, सैयद अब्दुल करीम क़ादरी। उनकी जो बहन थी सैयदा फ़हीम सुल्ताना जो मेरे वालदा है। मैं लीगल हायर्स में से अंडर 42 वफ़ के तहत मुतवल्ली बना। सबसे पहले सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी थे, उसके बाद सैयद अब्दुल हक क़ादरी साहब थे, उसके बाद सैयद ख्वाजा वजीउद्दीन चिश्ती थे जो मेरे बहन भाई थे, उसके बाद सैयद याकूब मोहिउद्दीन क़ादरी जो मैं हूँ। ये अराज़ी का मतलब ये है कि दरगाह के तहत 39 एकड़ 10 गुंटे टोटल अराज़ी है वक्फ नोटिफाइड प्रॉपर्टी, जिसमें सर्वे नंबर 1011 में 142 इलीगल हाउसेस है और 95 to 98 में गैर क़ानूनी तरीक़े से आरडीओ से ओआरसी इशू कराए, जिसका नाम नज़ीर है। नज़ीर का भाई मकबूल कब्ज़ा करके बैठा हुआ था। उसके बाद मकबूल का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। होने के बाद नज़ीर 2000 से लेकर 2009 के बाद फेक डॉक्यूमेंट बता के आरडीओ से ओआरसी इशू कराए। कराने के बाद हाई कोर्ट को जाके स्टे लिए, स्टे लेके फाइल को वहाँ से लॉक करा दिए ताकि ये बेंच पे ना आए, ये लोग विकेट ना कराए, हमारे कहने ज़मीन अटकी हुई रहे। तो हमारा मकसद ये है कि वफ़ की जायदाद वफ़ के नाम पे रहे। इसी वजह से हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। मैं तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, सीईओ साहब का और चेयरमैन साहब का और अकबर निज़ामुद्दीन साहब का और अब्दुल फ़तेह बंदगी पाशा साहब का और तमाम स्टाफ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। 2021 8वें महीने में मेरे को मुतवल्ली शिप मंजूर हुई अंडर 42 वक्फ एक्ट के तहत। वो हासिल होने के बाद ये दरगाह को मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आप इधर बताइए कैमरे। मैंने अपने ओन फंड से इसकी फेंसिंग कराया, मैंने अपने ओन फंड से ये समाखाना बनाया, ये शेड बनाया और आगे भी मैं लगाते जाऊंगा ताकि ये मेरे आबो असबाब की चीज़ है। और हज़रत जो है मेरे पढ़नाना है।
बीच में लोग आए, हम रिश्तेदार तुम रिश्तेदार, एक सिंडिकेट बना यहाँ पर, बना के तू वो ले ले, मैं ये ले लेता हूँ, मैं वो ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, मिलके काम करे। तो हमारे वक्फ बोर्ड को और हमारे को ये ना खुशगवारा दिखा। और दूसरी चीज़, हजरत के ने एक गज भी अभी यहाँ पर ज़मीन के वास्ते बदमाशी कर रहे हैं। अब दरगाह के अराजी में 39 एकड़ 10 गुंठे ज़मीन रहने के बावजूद हजरत को 1 रुपये की आमदनी नहीं है। ना तो ये घरों से है, ना तो वो लाइन से है। एक इसके पीछे लाइन माफिया और लाइन ग्रामर मिलके एक बेहतरीन तरीके से इसको अंजाम दे रहे हैं, जिसको प्रोफेशनल क्रिमिनल बोल सकते हैं। अब आपको तफसीली में डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। सबसे पहले ये है, आज हम सर्वे करने के लिए आए थे। ये वक्फ बोर्ड का ऑर्डर है। 31/10/2022 को मैंने एप्लीकेशन पहले दिया, उसके बाद मेरे को ये ऑर्डर मिला, जिसके तहत हम 4 एकड़ 11 गुंठे की आज सर्वे कराने के लिए आए थे। वहाँ के बदमाशा और लैंड ग्रामर समझिए या लैंड माफिया समझिए, गड़बड़ करके, बदतमीज़ी करके, मिसबिहेवियर करके हमारे स्टाफ को डिस्टर्ब करे। ये है ऑफिस ऑर्डर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का। इससे पहले मुतवल्लिशिप मिलते कि दरगाह के सामने दरगाह को छुपाने के लिए कब्ज़ा कर रहे थे। मैं कलेक्टर को एक लेटर दिया था, तो कलेक्टर साहब मेरे को ये मेमो दिए। कब दिए? 24 तारीख पहला महीना 2022 को। किसको दिए? म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ गदवाल। म्यूनसिपल कमिश्नर इस काम को अंजाम नहीं दिया, चाहे इनकी नादानी समझिए या मैनेज करे हुए समझिए या क्या है पता नहीं। मैं बार बार लगता 12 से 15 वक्त लेटर्स दे चुका हूँ, कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये कलेक्टर साहब का लेटर है, डेट देखिए आप, 24 तारीख पहला महीना 2022। ये इलीगल इंक्रोचमेंट को तोड़ो बोल के म्यूनसिपल कमिश्नर को बोल रहे हैं। ये हो गया। ये ऑर्डर के ऊपर ये बदमाशी न होना, ये लोग कोर्ट को नहीं जाना बोल के वफ़ की जायदाद बचाने के लिए केविट लिया मैं तेलंगाना हाई कोर्ट से, ये ऑर्डर के ऊपर जो आज हम सर्वे कर रहे थे। पेपर बताओ, पेपर बताओ, हम क्यों बताएंगे भाई? डिपार्टमेंट हमारे साथ है, डॉक्यूमेंट्स हमारे संगात है। हम जैसा पेपर बताएंगे फिर उसको दूसरे शेप में ला के गैर कानूनी तरीके से मिसयूज़ कर दे, हम वहाँ पर नहीं बताएं। मीडिया को इस वजह से बता रहे हैं ताकि हक़ और बातिल का पता चल सके। ये है पहले का ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर, जो 18 तारीख 8वां महीना 2021 एमआरओ को दिए। एमआरओ बिशपल्ली बोल के मंडल सर्वर है, उसको भेजे। खैर उनको डराए धमकाए, इससे पहले भी नहीं हुआ सर्वे। खैर खामोश बैठ गया मैं, फिर दूसरा ऑर्डर लिया, आया ये पुराना। अब रहा सवाल पानी, खासरा पानी जो बोल रहे हो, मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, पहानी पात्रिका विलेज गदवाल तालुक से निकाला मैं, डिस्ट्रिक्ट महबूबनगर, इन द ईयर ऑफ 1973-74 ये ट्रांसलेशन कराया। इसका मैं आपको मुंतखब भी बताऊंगा। ये पेपर हो रहे ना, देखिए पेपर क्या बता रहा है इसके अंदर। इनाम, पट्टेदार नेम सैयद अब्दुल खादर, इनामदार नेम सैयद शाह मोहम्मद खादरी। ये है पेपर, ये है गज़ीट मेरे नाम की, अब 2021 में बनी। सो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वाले प्रोफेशनल और हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। हर चीज़ जान के इंक्वायरी करके उसको बोर्ड में जाने के बाद रेजोल्यूशन पास होता, ताकि ये हक़ है ना है। ये तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की गज़ीट है, जिसके तहत अराजी है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। सामने लीजिए कैमरा और बताइए। 39 एकड़ 10 गुंठे पूरा दरगाह और इंस्टीट्यूशन का नाम है इसके अंदर। ये हो गया तीसरा, चौथा डॉक्यूमेंट। ये है मेरी प्रोसीडिंग, जो प्रेसिडेंट शाहनवाज कासिम IPS साहब बोर्ड में रेजोल्यूशन पास करे 23 तारीख 8वां महीना 2021। ये है मेरी प्रोसीडिंग। ये है मेरे बड़ों की, सैयद ख्वाजा वजीउद्दीन चिश्ती जो मेरे बहन भाई थे, उनको भी ऐसी सताए। उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत की वक्फ की जायदाद बचाने। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह जन्नत मग़फ़िरत करे। ये है ख्वाजा वजीउद्दीन चिश्ती साहब की गज़ीट 2010 की। ये है लीगल एड सर्टिफिकेट
सैयद शाह मोहम्मद कादरी, सैयद अब्दुल करीम कादरी, सैयद अब्दुल हक कादरी, सैयदा फ़हीम सुल्ताना। मैं लास्ट जो है फ़हीम सुल्ताना का लड़का हूँ, लीगल हायर बोलते हैं इसको। यह है ऑडियो का मुंतखब जो उस ज़माने में उर्दू में आता था, इसका ट्रांसलेशन करवाया मैंने। यह उसका ट्रांसलेशन, आप डेट देखिए इसके अंदर 11/4/63 1963 ऑडियो गदवाल ने दिया, इसके अंदर पूरे सर्वे नंबर से। ये है सर्वे नंबर 95, 96, 97, 98। आपको पुराना रिकॉर्ड भी बता रहा हूँ, वो 63 का आप देख लिए। अब 95, 96 के पाणिया पत्रिका बता रहा हूँ, खिदमती इनाम क्लियर देखिए आप, लिखे भाई। (93, 94) थोड़ा हाथ यह है सर्वे कमीशन रिपोर्ट उस ज़माने की। ये है हमारे इंस्पेक्टर सिराज साहब का लेटर जो आरडीओ को दिए थे, इसके ऊपर ओआरसी वगैरह इशू नहीं करना बोल के। इसके बावजूद भी आरडीओ को फेक डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी से 2009 में एनओसी लेके, जबकि मजाज नहीं है कि वक्फ की जायदाद को कोई एनओसी दे सके। डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी का तो कोई रूल ही नहीं है, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड भी नहीं दे सकता। एक बार वक्फ होने के बाद ता क़यामत तक वक्फ रहती हो, वो जायदाद कोई बेच नहीं सकता, कोई ख़रीद नहीं सकता। ये चीज़ है। एक मिनट मैं देख लीजिए, आपको सब बोलूँगा। ये इंस्पेक्टर साहब मेहनत करे सो। ये है वो लोग की फेक एनओसी जिसके तहत 95 to 98 क्या है ओआरसी, ये बेस के ऊपर ओआरसी इशू करा लेके कब्जा करके बैठे हुए हैं। 27 एकड़ ज़मीन है, सर्वे नंबर 95, 96, 97, 98। हम जेसी साहब कने गए, जेसी साहब हमारे फेवर में उस टाइम पे स्टे दिया था। जेसी साहब का ये स्टे है। जेसी साहब स्टे देने के बावजूद जेसी साहब ऑर्डर नहीं देना बोल के हाई कोर्ट को गए, जो सर्वे नंबर 95, 96, 97, 98 है। इंशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, पंजतन के सदक़े तुफ़ैल में, औलिया इकराम के सदक़े तुफ़ैल में वफ़ की जायदाद वफ़ के हक़ में आएंगी। कि हमें यकीन है अल्लाह की ज़ात पर। हम कोर्ट में भी विकेट कराने का काम कर रहे हैं। ये है ओआरसी, आप देखिए ओआरसी पे है, डेट नहीं है। आरडीओ को मैनेज करके निकाले। इसके साथ साथ मरने के बाद कितने साल के बाद निकाले वो भी बताऊंगा। 2009 उसको जो नज़दीक का भाई मकबूल मर गया सो आदमी के ऊपर ओआरसी दिया हो नहीं चलता हो। इसके ऊपर देखिए ओआरसी के ऊपर डेट ही नहीं है। इस पर 2009 की डेट है ना? साल है, डेट नहीं है। सब मैनेज करे हुए। डेट नहीं है, साल का साल है। ये हो गया दूसरा महीना। ये है मकबूल पाशा, जो इसका भाई 2000 में मर गया, 2009 में शुरू हुई इसके नाम पे। मैं इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में। इन्हें कब मारा वो भी बताऊंगा। ये परसों हाल ही में एक एनओसी 2022 में इशू हुई थी। हमारे इंस्पेक्टर साहब, डीएसपी साहब और हमारे वक्फ बोर्ड के स्टाफ जाके एफआईआर बुक कर रहे थे नज़ीर के नाम पे। अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ पुलिस की तरफ से। अब जो बच्चे हैं वो कौन है? यह है डीजीपी ऑफिस को भी कंप्लेन दिया था मैं। यह एसएचओ को भी कंप्लेन दिया था मैं। यह सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी लेटर दिया था मैं। मैं आपको केसीआर साहब भी 2010 में हमारे को लेटर दिए थे जब एमपी थे उन्होंने महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के। हम जाके कलेक्टर से रुजू हुए, ये फेक एनओसी क्या है भाई, कैसा देते, ये वफ़ की जायदाद है। ये केसीआर साहब एमपी थे, सो लेटर है।
देने के बाद फिर हम उसके पीछे पैरवी करते करते धरनी पोर्टल में लॉक कराए। केसीआर साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो धरनी पोर्टल लाए और वक्फ के जायदाद हम बचाए। ये धरनी में लॉक है, क्लियरली बता रहा वक्फ लैंड प्रोबेटेड लैंड बोल के। जब कलेक्टर आरडीओ रोक रहे हैं तो जनून डॉक्यूमेंट्स ही चूंगे ना भाई। 1039 का है 1039 1038 10 गुंठे है ना उसमें 4 एकड़ 11 1011 आपको ईच एवरीथिंग दूंगा मैं। कब हुआ रेडमार्क कब हुआ ये सर्वे नंबर पूरा जब ये धरनी आया जब ही हमने कोशिश करके लॉक करवाया। हाँ। कब हुआ वो तो रिकॉर्ड हमारे को अंदर इंडिविजुअल रहता ना, वो नहीं देते हो कलेक्टर साहब। पूरे 95, 96, 97, 98 पूरे हैं मेरे पास।